Hello students, welcome to my next video. Today I will be doing another sum based on goodwill only. But now, as I told you in valuation method, I think basically we have three categories. The first category is goodwill is raised, and then goodwill is raised and written off, and third one is when the value of goodwill is given in the balance sheet. But as per the new syllabus, there is no question based on goodwill raised and written off in the textbook. So what I did is I am taking a extra sum based on that, which I got from the last year syllabus. So I'll be sending you the question in WhatsApp group, and then the video you can hear. Okay. So the question is, following is the balance sheet of Dheeraj and Neeraj who shared profits and losses equally. Okay, profits and losses equally, and assets are given to you and liabilities are given to you. On 1st April 2013, they agreed to admit Suraj on the following terms and conditions. So it is admitted on 1st April 2013. So your new balance sheet will be prepared as on 1st April 2013. Suraj, the adjustment number 1, Suraj is to bring in cash rupees 90,000 towards his capital for 1/3 share in future profit. Now students are always having a doubt, what is the use of this 1/3? So before you forget, we will use that 1/3. What is the use of that 1/3? The use of 1/3 is used to calculate the new profit sharing ratio, sacrifice ratio. Okay, understood all of you? The share of the new partner is used to find out the sacrifice ratio and the new ratios. So first we will find out, as here the goodwill is raised and written off, so definitely you require a new ratio also. So we have to find out the new ratio first. So before jumping to the question, we will start solving the working note. The first working note is calculation of working note number 1, calculation of new profit sharing ratio. Calculation of new profit sharing ratio. So in this first step is balance of 1. Balance of 1 equal to 1 minus new partner share. 1 minus new partner share. So 1 minus, what is a new partner share is, as I told you in adjustment number 1, it is given that Suraj to bring in cash rupees 90,000 towards his capital for 1/3 share in future profit. So 1 minus 1 upon 3. So on solving this, 3 ones are 3 minus 1 upon 3. So 3 minus 1 is 2/3. This is the balance of 1. Now we find out new profit sharing ratio of the old partners are Dheeraj. So first we write Dheeraj. So the formula is old ratio into balance of 1. So that is old ratio. What is the old ratio? It is given equally. Very good. It is given equally. So we write 1 upon 2. So equally मतलब क्या हो गया? 1:1 हो, right? 1:1. तो 1:1. तो 1 + 1 कितना हुआ? 2 हुआ है. तो एक पार्टनर का शेयर क्या हो जाएगा? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय बैलेंस ऑफ 1, 2/3. तो आपको मिलेगा 2/6. सिमिलर वे फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग ratio of Neeraj. Same formula, old ratio into balance of 1. Old ratio is 1/2. Balance of 1, 2/3. You will be getting 2/6. So now share of the new partner. Who is the new partner? Suraj. Share of Suraj. So Suraj share
that is, you know, 1/3 is the share, right? We are giving you 1/3. Now see the denominator over here. Here it is 6, here also 6. The denominator should be 6. So in 3, what I will multiply to get 6 is 2. In 3, I will multiply in 2. So 1/3 into 2 upon 2. So 1 2s are 2, 3 2s are 6. So it means you can see the numerators 2, 2, 2. 2, 2, 2. So the new profit sharing ratio is, the new profit sharing ratio is 2:2:2, which is equal to 1:1:1. Okay, the new profit sharing ratio equal to 2:2:2, which will give you 1:1:1. So this is a new profit sharing ratio. Okay, new ratio, that is 1:1. So have you understood what is the use of this new partnership? Because children are taking 90,000 into 1/3. So don't do that. So 1/3 is different and 90,000 is different. So for 1/3 share, yani ki in the business, for 1/3 share, the partner is bringing 90,000 rupees. Okay. So now then, second adjustment is the firm's goodwill should be raised to 90,000 and it is to be written off after Suraj's admission in the new profit sharing ratio. यानी यहाँ पर हमने गुडविल का वैल्यूएशन मेथड्स कर रहे हैं. वैल्यूएशन मेथड में सेकेंड टाइप वी आर डूइंग द वैल्यूएशन मेथड सेकेंड टाइप. इन द सेकेंड टाइप द टाइप इज द गुडविल इज फर्स्ट रेज्ड एंड देन इट इज रिटर्न ऑफ. तो जब पहले गुडविल को रेज करते हैं फिर उसको रिटर्न ऑफ करते हैं तो उसका भी 2 एंट्री आएगा. पहला एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर आएगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट. तो अभी गुडविल रेज्ड का एंट्री अगर हम देखने जाएंगे, गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. जर्नल एंट्री गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. तो सबसे पहला एंट्री आएगा, गुडविल को रेज किया है. जो गुडविल का रेज एंट्री हमने जो टाइप 1 में किया है वही गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इज दैट इज धीरज कैपिटल अकाउंट, नीरज कैपिटल अकाउंट. सो गुडविल अमाउंट इज दे हैव टू 90,000 लेके आ रहे गुडविल. सो दोनों इक्वली बांट दो, it distribute among them equally 45,000. So goodwill account debit 90,000 to Dheeraj capital account, to Neeraj capital account 45,000. This is goodwill raised का एंट्री है. अब राइट ऑफ हुआ है तो जब राइट ऑफ एंट्री आता है तो राइट ऑफ एंट्री आएगा ऑल पार्टनर्स, यानी तीनों पार्टनर के वजह से गुडविल का वैल्यू कम हो रहा है. तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट दैट इज धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, सूरज भी आएगा. सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. तो यहाँ पे गुडविल 90,000 था. अब ये 90,000 इक्वली बांटा जाएगा 30,000, बिकॉज नया रेशियो क्या है, इक्वल आ रहा है. नया रेशियो जो है वो इक्वल आ रहा है. तो एंट्री क्या आया, धीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सूरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. दिस इज द एंट्री फॉर गुडविल रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ. ओके, फिर उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज अंडर वैल्यूड बाई 10%. तो टिक मार्क करो प्लांट मशीनरी, टिक मार्क करो लैंड एंड बिल्डिंग. स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200. तो स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 2,200. फर्नीचर टू बी reduced
to 10,000. So tick mark करो stock, tick mark करो furniture. Out of creditors, rupees 1,200 is no more payable. Out of creditors, rupees 1,200 is no more payable. So the tick mark creditors. And the sixth adjustment, if you see, the capital account to be adjusted in new profit sharing ratio by opening the current account. तो ये एक सम में आपने बहुत कुछ नए नए सीखने को मिल रहा है. सबसे पहला यहाँ पर नया चीज़ हमें ये मिला कि गुडविल रेस्ट या रिटर्न ऑफ हुआ है. दूसरा चीज़ यहाँ पर अंडर वैल्यूएशन हुआ है, ओवर वैल्यूएशन हुआ है. तो ये भी नया चीज़ हम पढ़ने को मिल रहा है हम लोगों को. और थर्डली यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा प्रोपोर्शनेट कैपिटल. यहाँ पे क्या बोला है, द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट. इसका मतलब क्या है मालूम है कि अब नया पार्टनर जब आ रहा है तो नया पार्टनर कुछ अपने शेयर के हिसाब से पैसा लेकर आता है. तो सिमिलर वे तो जूना पार्टनर ये भी बोलता है कि अगर नया पार्टनर अगर अपना शेयर के हिसाब से पैसा ला रहा है तो हम भी क्या करेंगे, जो भी हमारा शेयर है हम उसके हिसाब से पैसा लाएंगे. ठीक है, ताकि कोई ज़्यादा नहीं लाएगा, कोई कम नहीं लाएगा, अपने शेयर के हिसाब से सब लोग अपना कंट्रीब्यूशन करेगा. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वी फाइंड आउट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब यहाँ पर हम नया पार्टनर का शेयर को बेस रखेंगे कि अगर अपना 1/3 शेयर के लिए इतना ला रहा है तो ये अपने शेयर के लिए कितना लाएगा. तो ऐसा हम कैलकुलेट करेंगे. तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे, वी विल बी फाइंडिंग द प्रोपोर्शनेट कैपिटल. जैसा अभी देखो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे होगा. कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट नंबर 2. कैलकुलेशन ऑफ, वेरी सिंपल इट इज, कैलकुलेशन ऑफ प्रोपोर्शनेट कैपिटल. प्रोपोर्शनेट कैपिटल. ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बेस लेंगे. किसको बेस लेंगे, जो नया पार्टनर है. तो नया पार्टनर कौन है, सूरज है. तो सूरज को हम बेस हैं. सूरज का कितना शेयर है आपको मालूम है, उनका 1 शेयर है, क्योंकि इक्वल हो गया ना, 1:1:1. तो सिंपल एकदम यहाँ पे कैलकुलेशन सिंपल हो गया कि 1 शेयर है. तो 1 शेयर अगर सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम यहाँ पे देखो सूरज का 1 शेयर है, तो 1 शेयर के लिए सूरज कितना ला रहा है पैसा, 90,000 ला रहा है. तो डेफिनेटली धीरज कितना लाएगा, धीरज का 1 शेयर है तो वो भी कितना लाएगा, 90,000 लाएगा. सिमिलर वे सूरज का 1 शेयर है, कितना ला रहा है वो, 90,000. नीरज दूसरा पार्टनर, नीरज का कितना शेयर है, उसका ही 1 शेयर है, तो कितना लाएगा, वो भी 90,000 लाएगा. यानी ये अभी आपको देखो सर इक्वल है, इसके आपको समझ में नहीं आ रहा. अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हम लोग ऐसा करते हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल if new profit sharing ratio is for example 3:2 है suppose for example. तो हम लोग क्या करेंगे, ये सूरज का शेयर है, नया शेयर, तो सूरज 2 शेयर है. 2 शेयर के लिए कितना ला रहा है वो, 90,000. अभी धीरज कितना शेयर है, 3 शेयर है. एज पर द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना शेयर है उसका, 3 शेयर है. 3 शेयर के लिए कितना लाएगा, यहाँ पर एक्स डालेंगे. अभी अपना जो क्वेश्चन में था इक्वल है, इसके लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ा. तो अब यहाँ पे क्या हुआ, सूरज का 2 शेयर है, 2 शेयर के लिए कितना लाया, 90,000. और अगर धीरज का अगर 3 शेयर है तो 3 शेयर के लिए कितना लाएगा, वो एक्स लाएगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into x, 90,000 into 3. 2 into x, 90,000 into 3. तो x equal to 90,000 into 3 upon 2. तो कितना आएगा, 1,35,000 आएगा. समझा आपको, मैंने आपको दोनों मेथड बताया कि अब ये समय क्या हुआ, इक्वल है. इसके लिए जो सूरज का अमाउंट है वही नीरज का होगा, वही धीरज का होगा. अगर समझो इक्वल नहीं होता तो हम लोग इस तरह सॉल्व करेंगे.
अगर इक्वल नहीं होता तो हमने अभी ऐसा करेंगे। तो अभी अपने को वो सम आएगा वैसा कोई प्रॉब्लम, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको क्लियर करने के लिए मैंने इसका हेल्प लिया है। अब ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल जो है ये आपका हो गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, यानी जो आपका कैपिटल अकाउंट है, आपका जो कैपिटल अकाउंट है उसका क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल गया 90,000, यानी कि वो पार्टनर कितना ला रहा है, 90,000 ला रहा है। तो अगर सबका शेयर अगर सेम है तो अगर नया पार्टनर 90,000 ला रहा है तो जुना पार्टनर भी अपना बिजनेस में कितना रखेगा, 90,000। तो ये जो 90,000 अमाउंट है ये आप कहाँ लिखोगे, तो ये आप लिखोगे अपना कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में लिखना है टू बैलेंस कैरी, जो है ना टू बैलेंस कैरी डाउन होता है जब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। तो अभी हमने पहले ही निकाल लिया 90,000, 90,000, 90,000. This is the closing balance of capital account. And this amount you will be writing in balance sheet liability side. Underline करो capital, write capital. सूरज, sorry पहला है धीरज, नीरज, सूरज, 90,000, 90,000, 90,000, 2,70,000, 90,000, 90,000, 2 lakhs. This is the proportionate capital. समझ में आया? ये अपना एडजस्टमेंट नंबर 6 हमने किया है। 6th एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट। यानी कि हम लोगों को पहले प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालना है और बाद में जो भी बैलेंस अगर कैपिटल अकाउंट में आता है दैट वी हैव टू ट्रांसफर इट टू करंट अकाउंट, डिपेंड अपॉन द प्रॉब्लम। समटाइम वो लोग बोलते हैं कि ट्रांसफर टू कैश अकाउंट, कभी बोलते हैं कि ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, कभी बोलते हैं ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, कभी बोलते हैं ट्रांसफर टू इज बैंक अकाउंट। तो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम वी हैव टू राइट। तो यहाँ पे वी आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू इट्स यू आर गोइंग टू ट्रांसफर द बैलेंस अमाउंट टू इट्स करंट अकाउंट। वो लास्ट क्लोजिंग अपना लास्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पोस्टिंग करना चालू करते हैं। अपना पहले है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी फर्स्ट एलिमेंट इन एसेट्स है प्लांट एंड मशीनरी विच इज 45,000. Leave one line. Land and building. Land and building. It is 84,000. Then you have patents. Patents is intangible asset. Patents 3,400. Stock is an asset 47,800. Inner column. Furniture 10,600. Right in the inner column. Debtors 80,000. Right in the inner column. Debtors पे आई थिंक कोई एडजस्टमेंट नहीं है शायद से, या debtor is having no adjustment, so write directly in the outer column 80,000. कैश अकाउंट हमने बनाया है, वी हैव प्रिपेयर्ड ए कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट हमने बनाया है। अगर तो कैश अकाउंट आएगा टू बैलेंस, कैश का डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, इट इज 10,200. ओके, नाउ वी विल गो फॉर लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपका है कैपिटल अकाउंट धीरज एंड नीरज। सो इट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. सो वी राइट हियर बाय बैलेंस brought down, by balance brought down 1,25,000, 35,000. Then creditors bills payable. Creditors bills payable is a liability. So creditors राइट इनर कॉलम 86,200. उसके बाद है बिल्स पेएबल. बिल्स पेएबल नो एडजस्टमेंट 28,000. जनरल रिजर्व
जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका जर्नल एंट्री क्या आएगा, पार्टनर्स को इनकम है तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाएगा, तो एंट्री विल बी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जनरल रिजर्व को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व। ये जूना प्रॉफिट है, पिछले सालों का प्रॉफिट है जिस समय में नया पार्टनर बिजनेस में नहीं था। तो हम लोग ये अमाउंट क्या करेंगे, पार्टनर्स के अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट 6,800, तो यू विल बी गेटिंग 3,400, 3,400 हमने इक्वली बांट दिया है। इक्वली बांटते समय हम क्या करेंगे, सिंपल डिवाइड बाय 2 करेंगे, 6,800 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, दैट इज 3,400, 3,400। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट, सूरज, अगर आपको एंट्रीज, इफ यू वांट द हेल्प ऑफ एंट्रीज, इफ यू वांट द एंट्रीज, ओके। सो पहला see the first one, Suraj to bring 6 cash 90,000 towards his capital। या हम लोग जनरल रिजर्व वापस रिपीट करते हैं। जनरल रिजर्व का एंट्री अगर हम पास करते हैं, फिर पास एंट्री फॉर जनरल रिजर्व, एंट्री क्या आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, धीरज एंड नीरज कैपिटल अकाउंट। जी देखो, जनरल रिजर्व भी कहाँ दिया है, लाइबिलिटीज़ में दिया है। लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है क्रेडिट साइड है। अब हम उसको अभी ज़ीरो करने वाले हैं, जनरल रिजर्व भी दिखेगा नहीं, तो इसके लिए क्रेडिट का आइटम को हमने डेबिट में लिख दिया, दैट इज जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। और ये पार्टनर्स के लिए इनकम है, इसलिए हमने लिखा है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू धीरज कैपिटल अकाउंट टू नीरज कैपिटल अकाउंट। तो हमने पोस्टिंग क्या किया है, जनरल रिजर्व अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो वहाँ पे पोस्टिंग नहीं आएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, सो वी राइट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 3,400, 3,400। देन वी हैव द नेक्स्ट इज पोस्टिंग हमें करना है। नाउ 90,000 कैपिटल आ रहा है, सूरज इज ब्रिंगिंग 90,000 फॉर कैपिटल। So what is a journal entry for new partner bringing cash towards capital? So the entry is, पैसा आ रहा है, cash account debit, cash account debited to Suraj capital account. So the journal entry is cash account debited to Suraj capital account. So cash account is debited Suraj capital. So the adjustment number 1, Suraj to bring in cash rupees 90,000 towards his capital for 1/3 share in future profit. So Suraj is bringing cash into the business, so journal entry will be cash account debited to Suraj capital account. So cash account debit side, in cash account debit side to Suraj capital account 90,000, and in partners capital account credit side by cash account 90,000. So the new partner is bringing cash into the business. Second adjustment is the firm's goodwill should be raised to 90,000 and it is to be written off after Suraj admission in new profit ratio. So the goodwill is raised. Today we are doing the second case of valuation method. Goodwill is first raised and then written off. So when the goodwill is raised and written off, I think I have written this before also, I am just recollecting once again. So the journal entry is goodwill account debited to Dheeraj capital account to Neeraj capital account, and then it is written off Dheeraj capital account debited, Neeraj capital account debited, Suraj capital account debited to goodwill account. See, you have to learn the entries by heart so that it will be very easy for posting. Okay, so when the goodwill is raised, so goodwill account is debited, so in goodwill account debit side, right, Dheeraj capital account 45,000 to
नीरज कैपिटल अकाउंट 45,000. Second, there is goodwill account debited to all partners capital account. So in partners capital account credit side, write by goodwill account. So the amount is 45,000. 45,000. This is sacrifice ratio. We are distributing the goodwill amount in sacrifice ratio. Now the goodwill is written off. So the journal entry will be all partners capital account debited. All partners are debited. So in partners capital account debit side, all partners are debited. So partners capital account debit side to goodwill account 30,000. 30,000. ठीक है, 30, 30, 30. It will be distributed among all the partners in the new ratio. So when the goodwill is written off, raised and then written off, then definitely you have to use the new ratio. Now the third adjustment, I think the second effect also should be there. Partners capital account debit side, and second effect will be goodwill account credit side by Dheeraj capital account by Neeraj capital account by Suraj capital account 30,000. So the goodwill account get tallied because no other entries for goodwill account. 90,000. So this way your goodwill account get closed. Now the third adjustment, plant and machinery was undervalued by 10%. Plant and machinery. Now this is again a new adjustment. Pay attention properly, listen it carefully. Now plant and machinery was undervalued by 10%. Undervalued मतलब क्या, कम करके दिया है. यानी कि अगर जहाँ पे 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए, बट क्या किया वो लोग ने, कम करके दिया. कितना कम करके दिया है? 10% कम करके दिया. यानी 10% कम मतलब वो 90% हुआ है. यानी उसका एक्चुअल वैल्यू कितना होना चाहिए? 100% होना चाहिए, बट उसको 10% कम करके दिया है, दैट इज 90%. तो यानी जो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू जो दिया है, द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी, it is given as 45,000. Now this 45,000 is 90%. Are you understanding? See, when the normal percentage is 100%, it should be 100%. बट क्या बोला है कि 10% कम करके दिया है, and 10% कम करके दिया, इसका मतलब वो 90% है. यानी 100 रुपये का चीज़ दिखाया कितना उसको, 90 रुपीज़. तो हमें उसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कितना है करके. तो यानी अभी 45,000 जो है वो 90% है. तो 100% कितना होगा? What will be 100%? So now you will cross multiply. 90x equal to 100 into 45,000. X equal to 100 into 45,000 divided by 90. So this get cancelled. 9 1s are 9, 9 5s are 45. So the answer is 50,000. यानी उसका वैल्यू 50,000 होना चाहिए, लेकिन दिया कितना है? 45,000. यानी प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू एग्जैक्टली कितना होना चाहिए? 50,000 होना चाहिए, लेकिन लिखा कितना है? 45,000. यानी कि अभी हमको बढ़ाना पड़ेगा, प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा. सो वी राइट हियर एप्रिसिएशन, बढ़ाना है तो इसीलिए एप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़. इसका सेकेंड इफेक्ट, अपना प्लांट मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है,
our plant machinery value is increasing, so it is our profit. So we write here by plant and machinery, 5,000 rupees. Same way, we go for the next adjustment, land and building. Land and building was overvalued by 20%. Now land and building, it should be 100%, बट क्या दिया है, ओवर वैल्यूड, यानी बढ़ा कर दिया है, इट इज़ ओवर वैल्यूड, इट इज़ बढ़ा कर दिया है, तो बढ़ा यानी कि 120%, 20% बढ़ा कर दिया है, तो इट बिकम्स 120. ओके, तो यानी लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना दिया है, लैंड बिल्डिंग में 60, लैंड बिल्डिंग वैल्यू इज गिवन एज 84,000. सो 84,000 इज 120%. 84,000 इज 120%, तो 100% कितना होगा. सो ना क्रॉस मल्टी समझ में आ रहा है आपको, 100% होना चाहिए, बट क्या दिया है उन्होंने, 20% बढ़ा कर दिया है, 20% बढ़ा कर दिया है, यानी कितना हो गया, 120% हुआ. तो यानी 120% इज 84,000. सो 100% विल बी हाउ मच. सो क्रॉस मल्टीप्लाई 120x equal to 100 into 84,000, x equal to 100 into 84,000 divided by 120, x equal to, this 1 0 get cancelled, 1 0 get cancelled, so 12 and 84, so I think it will go in 7, 12 ones are 12, 12 sevens are 84, so the answer is 70,000. 700 into 100 is 70,000. यानी अपना लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो गया है अभी, 70,000. आपका लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू हो गया है 70,000. पहले कितना था, 84,000, अभी कितना हुआ, 70,000. यानी अपने लैंड बिल्डिंग का वैल्यू क्या हो, बढ़ गया है, तो उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन. कितना एप्रिसिएशन है, 14,000. सॉरी, कम हो गया नहीं, सॉरी, तो ये भी राइट है माइनस, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, वैल्यू कम करना है, इट इज़ कॉल्ड डेप्रिसिएशन. 14,000 माइनस करना पड़ेगा, यानी अपने लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कम हुआ है, अपना एसेट्स का वैल्यू कम हुआ है, तो ये अपने लिए लॉस है. लॉस हम लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, टू लैंड एंड बिल्डिंग 14,000. To land and building 14,000. The next is stock to be increased by 2,200. Stock to be increased by, यानी स्टॉक को बढ़ाना है, तो स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय, तो इट इज एप्रिशिएटेड 2,200, तो इट बिकम्स 50,000. Stock to be appreciated by 2,200, so 47,800 plus 2,200 will give you 50,000. So appreciation is stock का वैल्यू बढ़ रहा है, तो स्टॉक का वैल्यू बढ़ रहा है, तो इट इज़ एन एप्रिसिएशन, तो इट इज़ अ प्रॉफिट, इट इज़ एन इनकम. सो वी राइट हियर बाय स्टॉक अकाउंट 2,200, बाय स्टॉक अकाउंट 2,200. देन फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000 रुपीज़, यानी फर्नीचर का वैल्यू कम किया गया है, नहीं रिड्यूस, कम कर, कितना कम किया है, टू 10,000, यानी कि फर्नीचर को कम करते करते कितना तक लाया है, 10,000 तक लाया है. फर्नीचर का वैल्यू कम करते करते कितना तक लाया है, 10,000 तक लाया है. इट इज़ रिड्यूस टू 10,000. अब देखो, पहले था 10,600, अभी कितना हुआ, 10,000 हुआ, यानी कि वो उसकी वैल्यू कम हुई है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन. तो कितना है डेप्रिसिएशन, 600 रुपया. तो फर्नीचर वैल्यू कम हुआ है, तो इट इज़ अ डेप्रिसिएशन. सो वी राइट हियर ऑन डेबिट साइड टू फर्नीचर 600 रुपीज़. आउट ऑफ क्रेडिटर्स रुपीज़ 1,200 इज नो लॉन्गर पेएबल. क्या बोला है,
क्रेडिटर्स में से 1200 रुपये इज नो लॉन्गर पेएबल, दैट मीन्स वी आर नॉट सपोज टू पे 1200 एनी मोर। तो अगर हमें नहीं पे करना है तो वो अपने लिए फ़ायदा है। तो अपना क्रेडिटर्स कम हुआ है, क्रेडिटर्स कम हुआ है तो हम यहाँ लेस करेंगे, इधर लेस करेंगे, वेव्ड ऑफ लिखेंगे, वेव्ड ऑफ नहीं भरना है, वेव्ड ऑफ 1200, सो इट कम्स टू 85,000। वेव्ड ऑफ यानी हमें नहीं भरना है। तो अगर हमें क्रेडिटर्स नहीं भरना है तो इट इज़ आवर प्रॉफिट। सो वी राइट इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स 1200, बाय क्रेडिटर्स 1200। And the last adjustment, the sixth adjustment, the capital account to be adjusted in new profit sharing ratio by opening the current account. Now this will be when you close the account, you will be getting the answer. So first we will start closing the revaluation account. So we will close first revaluation account. So if you see the totaling, debit side total is 14,600. Okay. सो डेबिट साइड टोटल इज़ 14,600 और क्रेडिट साइड टोटल है 8,400। इसका मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का अमाउंट दोनों बाजू लिखो 14,600। अब उसमें से आप क्रेडिट का अमाउंट को माइनस करो, क्रेडिट का अमाउंट को माइनस 14,600 में से माइनस करो 8,400, तो आपको मिलेगा, माइनस करने पर मिलेगा 6,200 मिलेगा। This is nothing but loss. So by partners capital account, underline it, we write here Dheeraj, we write here Neeraj, so 3,100 हमने इक्वली डिवाइड किया बिकॉज द रेशियो इज इक्वल। तो ये 6,200 को हमने दोनों में इक्वली बांट दिया है, 3,100, 3,100। नाउ दिस अमाउंट विल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो लॉस 3,100, 3,100। नाउ यू close partners capital account. So on closing the partners capital account, you can see अभी धीरज का टोटल डेबिट साइड में कम है। अगर आप टोटल करोगे इट कम्स टू 1,23,100। देखो 1 लाख में देखो टोटल लिख रहा हूँ 1,23,100, ठीक है। और वही अगर मैं क्रेडिट का देख रहा हूँ तो आई एम गेटिंग 1,25,000, 30, 70, 1,73,400 आ रहा है। ये डेबिट का टोटल आ रहा है 1,23,100, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 1,73,400। तो इससे क्लियरली समझ रहे हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड का अमाउंट दोनों बाजू लिखो। अब उसमें से ये माइनस करो, माइनस करने पर आपको आता है 50,300। दिस विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, बिकॉज उन्होंने क्या बोला लास्ट एडजस्टमेंट कि द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट, मीन्स वट एवर इज अ बैलेंस दैट विल बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। सेम वे यू टोटल नीरज अकाउंट, नीरज का ये 30, 90, 1,23,100 है। एंड इफ यू सी द क्रेडिट साइड टोटल इट इज 45,83,400। इफ यू सी यहाँ पर ये 1,23,100 है और ये 83,400 है, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज़्यादा है। So write the debit side amount on both the side 1,23,100। अब उसमें से माइनस करो 1,23,100 में से 83,400 को माइनस करो, so you will be getting 39,700।
39,700. ओके, सो दिस कैसे मिला आपको? 1,23,100, 1,23,100 minus 83,400, so you will be getting 39,700. This will go to current account. Okay, now सूरज का है 30 + 90 1,20,000, और यहाँ पे सूरज का सिर्फ 90,000 है, तो यानी तो ये 1,20,000, ये 90,000 है, तो विच साइड इज हेवियर? डेबिट साइड इज हेवियर, राइट? ऑन बोथ द साइड 1,20,000, 1,20,000 में से 90 माइनस करो, कितना आएगा? 30,000. दिस विल ऑल्सो गो टू करंट अकाउंट. दिस विल ऑल्सो गो टू करंट अकाउंट. सो अभी करंट अकाउंट का आएगा, नेक्स्ट इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट्स और लायबिलिटी साइड में. अब करंट अकाउंट का बैलेंस दोनों साइड भी आ सकता है, एसेट में भी आ सकता है और लायबिलिटीज़ में भी आ सकता है. अब जैसा देखो, धीरज का डिफरेंस डेबिट में आया है, तो बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा. बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड मतलब बैलेंस शीट का लायबिलिटीज. तो यहाँ पे लिखोगे करंट अकाउंट, करंट अकाउंट धीरज 50,300. उसी तरह अभी यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में आया है, so this will go to बैलेंस शीट डेबिट साइड. बैलेंस शीट का डेबिट साइड मतलब बैलेंस शीट का एसेट साइड है, सो बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखो करंट अकाउंट, अंडरलाइन करो नीरज और सूरज. तो नीरज का है 39,700 और इसका 30,000, दोनों को जोड़ो 69,700. This way we close the partners capital account. Now we close the goodwill account. We close the goodwill account. तो goodwill account close किया हमने. Then we close the cash account. So cash account total comes to 1,200,000, 1,200,000, 1,200,000. This is by balance carried down. This will go to balance sheet asset side. Cash in hand 1,200,000. So now if you total the asset side and the liability side, you will be getting 4,33,300. 4,33,300 if you add up the sum total. So this way this sum gets over.